वी आर इन लग्जमबर्ग। हम आए हैं दुनिया के सबसे अमीर देश लग्जमबर्ग में। आए तो हम वर्क ट्रिप के लिए हैं, पर हम दो घुमक्कड़ों को बिना घूमे चैन कहाँ मिलेगा। आते साथ ही कुछ बहुत अच्छे पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और डराने वाले एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिला, और इस वीडियो में हम उन सभी अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे। तो फिर शुरू करते हैं। So we are here in Luxembourg. We landed literally 1.5 hours ago, and we are now already on our first trip to Germany, which is like 1 hour away from here. There's a town called Trier, which is a Roman town, and we will be taking a train. So we are walking to a train station, which is almost like 15 minutes walk from our hotel in the central area. Yeah. बट एज यूजल प्लान तो चेंज होना ही था। त्रिया जाने की जगह कहीं और ही चले गए हम लोग। सो इट्स अबाउट 4 p.m. right now, and we had just had a lunch. Lunch means like we had a burger from a Burger King because that was something near to the station we are going to. But while we were sitting in the station, we decided uh, to go to another place instead of going to Trier, which was the town in Germany, because we found out that the return train from the town is the last train is at 6:45. 6:37 to be very specific, and that's a problem, right? Because the moment we'll reach there, we'll have to start preparing for the return. It will just be 1 hour time from the time we land there, we reach there, and and then we take the train for returning to Luxembourg. So instead, we are going to this point called Tri Point, which is a point between Luxembourg, France, and Germany, and it is about 50 minutes by bus from here. So we are taking a bus number 402. We are just gonna be walking there now. We are literally near the railway station. If you see, that's the railway station. Everyone is walking down there, and the tram is also going there. Now we are gonna be going to that point. Yeah. In short, अब हम ट्रियर नहीं, हम शेंजन जा रहे हैं, क्योंकि दो होशियार लोगों ने ट्रेन के बारे में पता तो करा ही नहीं था। लास्ट डॉइचबान ट्रेन ट्रियर से लग्जमबर्ग 6:45 को आती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं था हमारे लिए। और बाय द वे, ये जो इन्फॉर्मेशन है डॉइचबान के बारे में, ये भी गलत निकली। इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। अभी हाल तो हम लोग शेंजन की बस लेने निकल पड़े। बस स्टॉप तो स्टेशन के पीछे की तरफ ही था, जो कि 10 मिनट का रास्ता था। पर भाई, ये 10 मिनट का रास्ता, परेशान हो गए। ये एरिया गारे एरिया पड़ता है। गारे का मतलब रेलवे स्टेशन होता है फ्रेंच में। पर इस एरिया की एक स्पेशलिटी है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। यूरोप में पहली बार ऐसा लगा कि चलना सेफ नहीं है, क्योंकि गारे एरिया फेमस है ड्रग की सेल के लिए, और चारों तरफ आपको लोग ड्रग्स करते हुए, नशे में पड़े धुत, या आपको परेशान करते हुए या चोरी करते हुए दिख जाएंगे। ये एरिया बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और इन माय ओपिनियन लग्जमबर्ग जैसे रिच देश में ये देखना टोटली अनएक्सपेक्टेड था। Is actually free because this is the door, if you see, and you just come in, you just sit, and you go. It's free. All public transport in Luxembourg is free, and you can just go anywhere in the Luxembourg uh, using this public transport. Isn't this amazing? इन शॉर्ट, लग्जमबर्ग में सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन या किसी भी प्रकार का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सभी के लिए फ्री है। We are doing, or we are just passing through a passage
after we got dropped at a stop in a Shenzhen village or a Shenzhen town per se. This is a town where there is a spot, and probably, in fact, I don't know, we have to do a research that why Shenzhen visa or Shenzhen visa is called Shenzhen visa because of this village, because this is a spot where there are 3 countries borders will meet here, and we're gonna be go there at this point in just few minutes. बस स्टॉप से शेंजन बॉर्डर पॉइंट सिर्फ 15 मिनट की दूरी पर ही है। आप सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं अगर आपके पास गूगल मैप्स है। बस या टैक्सी लेने की कोई ज़रूरत नहीं। So, subsequently the Shenzhen region came through the name of this town, this village, because it is strategically located in the border between Germany, France and Luxembourg, and this small town is based in Luxembourg, where we have Shenzhen is alive, where we get, like as Indians, we get the Shenzhen visa, due to which we can travel like a lot of Europe, the Europeans can travel, and this is the treaty, and we are standing there. So thank you, whoever did this. 40 साल पहले 1985 14 जून के दिन इसी गांव में शेंजन ट्रीटी मोसेले रिवर के ऊपर साइन की गई थी। वो दिन है और आज का दिन 29 देश यूरोप के शेंजन ट्रीटी के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से आप इन सभी देशों में फ्रीली घूम पाते हैं। हम वो वाइट फ्लोटिंग डिवाइस देख रहे हैं, वो बॉर्डर, वो इंटरसेक्शन है फ्रांस, जर्मनी और लग्जमबर्ग की बॉर्डर का। हम एग्जैक्टली उस पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ शेंजन विलेज है, और शेंजन विलेज के अंदर का ये पॉइंट है। हम एग्जैक्टली उसके अंदर जा नहीं सकते, बट आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाते हैं। लोग फिशिंग कर रहे हैं, मे बी कॉन्फ्लिक्टिंग वाटर्स में, बिकॉज 3 नेशंस में कौन सी कंट्री लाइसेंस देगी फिशिंग के लिए। सब कुछ देखने के बाद हमें लग्जमबर्ग वापस उसी बस से ही जाना था जिससे हम आए थे, 402 नंबर की बस। और वो बस लगभग 35 मिनट बाद थी, तो घुमक कर निकल पड़े वॉक पर। 35 मिनट तक वॉक करने के बाद हम लोग बस के पॉइंट पर पहुंचे और वहां से वापस लग्जमबर्ग। गौर से देखिए ये बदक को, ये बदक पल में ही कभी ये लग्जमबर्ग की मछलियाँ खाता है, कभी ये फ्रांस की या कभी जर्मनी की। ये ट्रूली एक इंटरनेशनल बदक है। दूसरे दिन ऑफिस के बाद हमने त्रियर जाने का फैसला किया, और इस बार हमने CFL ट्रेन ली, ना कि डॉइचे bahn। CFL सर्विस लग्जमबर्ग की सर्विस है जो बसेस और ट्रेन्स चलाती है बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी के लिए। और त्रियर जाने के लिए सुबह 5 बजे से लगभग रात के 12 बजे तक वहां जाने और वहां से आने के लिए ट्रेन्स अवेलेबल होती हैं, और ये बात हमें पहले पता नहीं थी। क्या कह रहे हैं? त्रियर जा रहे हैं, जहाँ लग्जमबर्ग वाले अपनी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाते हैं, क्योंकि लग्जमबर्ग में तो सब महंगा मिलता है। Also, it's one of the oldest cities in Germany. Also, Not shopping is not the only thing. I'm telling it very much from a household perspective. Also, that's also oldest city. It was once ruled by Roman Emperor. So, Trier. yeah, we are going to go see some Roman architecture. We have landed in Trier. Now we will be walking to Porta Nigra, which is the old historic Roman building. That should be about 10 minutes walk from here. त्रियर सिटी के फेमस पॉइंट्स में से हमने पोर्ता निग्रा और हॉफ्टमार्क स्क्वायर देखने का फैसला किया। इसके अलावा सेंट पीटर्स कैथेड्रल और चर्च ऑफ आवर लेडी भी काफी फेमस है, जो पास में ही है, और लगभग 10 मिनट वॉक करने के बाद हम पोर्ता निग्रा पहुंच ही गए। हाय ब्यूटीफुल, वेयर आर यू गोइंग? Vamos a la Trier. पोर्ता निग्रा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये लेट 2nd सेंचुरी AD में त्रियर शहर के वॉल्स के साथ बनाया गया था। त्रियर शहर उस जमाने में ऑगस्टा त्रिवरम भी कहा जाता था। पोर्ता निग्रा मागे जे तुम्ही बघताय ते जर्मनीचा शनिवारवाडा आहे। What she's saying is कि जो तुम पीछे देख रहे हो जर्मनी का शनिवारवाड़ा है, रेफरेंस टू Honeckers, right? They will know what
we are talking about. Maybe other people are out from Maharashtra, but mostly from Porta Nigra. That's Porta Nigra in the background. पोर्ता निग्रा के बाद हम हॉफ्टमार्क स्क्वायर की तरफ चल दिए, जो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही था। ये स्क्वायर अपने क्लॉक टावर, शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स और स्पेशलिटी वाइन के लिए भी फेमस है। Since you are in Germany, तुम्हारे पास 3 options हैं. Option 1, do you want to drink German beer? Option 2, do you want to drink German beer? Option 3, do you want to drink German beer? और हमने पी भी जर्मन बियर, पर वो हम इस वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि ये बच्चे भी देखते हैं। पर ये मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको। बाथरूम इज in the basement. Feels like some sort of an underground club. Those are bathrooms. And there are things which are way and down from here. There's storage. And then we go up. म्यूजियम जैसे बाथरूम देखने और कुछ खाने के बाद हम स्टेशन के लिए निकल पड़े। रास्ते में सेंट गंगोल्फ चर्च और सेंट पीटर्स कैथीड्रल देखते हुए हम त्रियर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। 3 दिन हो गए थे और हमने लग्जमबर्ग सिटी के अंदर कुछ भी नहीं देखा था। तो हमने डिसाइड किया कि हम ऑफिस से जल्दी आ जाएंगे। लगभग 1 बजे हम निकले और इस ब्रिज को, जिसे ला पसेरेल या ओल्ड ब्रिज भी कहते हैं, इस ब्रिज को लेकर हम नेशनल मॉन्यूमेंट ऑफ सॉलिडारिटी की तरफ चल दिए। ये मेमोरियल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जान गंवाने वाले लग्जमबर्ग के लोगों की याद में बनाया गया था। वहां जलती हुई इटर्नल फायर देखने के बाद हम होली ट्रिनिटी प्रोटेस्टेंट चर्च की तरफ चल दिए। चर्च को बाहर से ही देखा और फिर हम ग्रैंड ड्यूचेस शार्लेट मॉन्यूमेंट की तरफ पहुंचे। ग्रैंड ड्यूचेस शार्लेट लग्जमबर्ग को सबसे लंबे टाइम तक रूल करने के लिए जानी जाती है। फिर हम गए विलियम स्क्वायर, जो शहर के बीचों बीच पड़ता है। ये स्क्वायर फेमस है 1884 में बनाए हुए नीदरलैंड के किंग विलियम्स II की स्टैच्यू के लिए, जो कि 1840 से 1849 तक लग्जमबर्ग के ग्रैंड ड्यूक भी थे। इस स्क्वायर की वाइब को एंजॉय करते करते हम ये बात तो भूल ही गए थे कि आज हमारी रिटर्न फ्लाइट भी है। तो हमने कुछ पॉइंट स्किप किए, पर हमने द गोल्डन लेडी देखने का फैसला किया। ये मेमोरियल 1923 में पहले वर्ल्ड वॉर में मारे गए लग्जमबर्ग के लोगों की याद में बनाया गया था। यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वी रश टू द एयरपोर्ट एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर ट्रिप।